What are the exceptions in size? Size exceptions कल is what? एग्जाम का पेपर क्वेश्चन पर है क्या? ये मुझे मिलता ही नहीं बेटा, मैं उनको कहता हूँ तो फिर पीछे पड़ना पड़ता है। कल कोशिश करते हैं, ठीक है ना? कल मैं तब तक अरेंज कर देता हूँ। इन बिटवीन द क्लास आई विल आस्क इट, विल डिस्कस टुमारो। ठीक है सर फिडल? हाँ, विल डिस्कस इट टुमारो, डोंट वरी, विल आस्क नाउ ओनली। They should send it on regular basis, but if you have to ask always, every time you have to ask it. सर हाँ सर। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है सर। I will see, I will discuss beta. Let me start the session first. ओके सर। Sumit and Disha I already uploaded, but I couldn't reply. ठीक है। Along the group, along the period first, from left to right, what is happening on Z effective? Z effective increases, so the size will decrease. But if you consider the inert gas also, for the inert gas you have to consider what? Van der Waals radius. Then we say that it is bigger. Otherwise, we don't consider it in discussion. Second thing, from top to bottom, size should increase because of what? Number of orbits, number of shells increases. Exception is what? Aluminium and gallium is almost having same size, but aluminum is bigger actually. Same with the for deep log elements, from left to right, if you see, so it is decreasing till Mn. After that, it is almost constant and suddenly increases because after some time, after Mn, what is happening? Electrons are added and gets paired, and because of pairing, the repulsion taking place. And this exception, 4D series elements are similar to what 5D series element in size. So we call it chemical twins. The chemical properties matches. What is happening, I will tell you. We call it lanthanide contraction. Yesterday, last class we didn't discuss it. From lanthanum to hafnium, what is happening? F orbitals are filled. F orbitals are filled. The size decreases. Size decreases till what? 14 elements, you can say. 15, 58 to 71, 4F14. So 14 elements between La and hafnium along the period, size what? Decreases. Since size decreases too much, so that down the rope if you move from zirconium to hafnium, the size almost becomes same. If there is no element between lanthanum and hafnium would have what? Higher size than zirconium. But from lanthanum to hafnium, there are 14 elements in which the size decreases continuously. There's, I think, one exception or two exceptions are there. Size decreases. Since size decreases from 58 to 71, so the size almost becomes what? Equal to zirconium. And this is due to what? Poor shielding effect of F orbitals, we call it. Now ionic radius. अब देखिए यहाँ पे बहुत simple है. For this I need a discussion. You can see here. During formation of cation, we remove one electron, and if you take the Z effective wala part, Z minus sigma, proton is not decreasing. During formation of cation, electrons are removed, sigma will decrease. Therefore, Z effective will increase, because if electrons decreases, sigma will decrease. But we are not removing proton, so Z will not remove, Z will not decrease. Similarly, during formation of an ion, sigma increases, Z effective decreases. Z remains constant. Z remains constant. Why? Because we are removing electrons or adding electrons. We are not changing the protons.
So Z remains constant. When cation is formed, then a positive charge on the nucleus exceeds the number of electrons. The effective nuclear charge increases. The results in the remaining electrons are more strongly attracted by the nucleus. The size of cation is always smaller than the corresponding atom. On the other hand, size of an ion is always higher than the size of corresponding atom, because during formation of an ion, effective nuclear charge decreases. So size of A minus is more than size of A. Size of A is more than size of A plus if Z remains constant. We can say that if I talk about Mg and Mg2 plus, Mg की size ज़्यादा हो जाएगी, but F minus size what? More than F. Similarly here also. Now can you tell me one thing? Let's do one problem. Compare the size of following: Na plus, neon, F minus, O2 minus. बताइए. You can put it Mg2 plus also. Compare. And we'll conclude something on this basis. और उनका ये आसान है, कोई बड़ा टफ नहीं है. सर मुझे वो ऑप्शन आया सर, लेकिन पहले तीनों ऑप्शन करेक्ट है सर उसमें. सर जब मैंने एग्जाम में सॉल्व किया तो मुझे ऑप्शन बी मिला सर, इसलिए मैंने वो टिक कर दिया, लेकिन वो गलत हुआ था. मैंने उसको फिर से सॉल्व किया तो मेरे को तीनों भी करेक्ट सर. देखता हूँ बेटा, को चेक करता हूँ. ओके सर. But question is good. Good question is. हाँ सर, ये एक ही डाउट है बस. Paper was easy ना? या सर, पेपर वाज इजी. Okay. But always expect difficult paper than this. सोच के जाइए, मिल जाए आसान तो अच्छा है, but expect always better paper. Solve हुआ क्वेश्चन बताओ. सब में कॉमन है, बताओ पहले. अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है. What is common in among all this ions? What is common? Neon, if I remove it, I will remove that neon. Because for that you have to take Pandava and we'll get confused. What is common among all this? Think and tell me quickly. They all are radicals. No. ठीक है, सबका radical. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम. No. बेटर आंसर चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो सकता है. हाँ, हो सकता है. We can assume it. So assume that we can prove it. All are isoelectronic. And isoelectronic always, कभी भी, हमेशा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा जरूरी नहीं है. कैल्शियम का और स्कैंडियम प्लस का सेम नहीं होता. I discussed already. All are isoelectronic species. अगर ये सभी isoelectronic हैं तो सबका सिग्मा क्या होगा? Sigma is same for last electron.
ठीक है, वो भी तब जब सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगे। तो सिग्मा इज सेम फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट, सेम। जो आपने कहा वही लगा दिया हमने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, सिग्मा सेम हो गई। और सबका z क्या है बेटा, अलग अलग है कि नहीं? z इज व्हाट 12, z is 11, z is 9 and z is 8. Understood everyone? तो z इफेक्टिव कंपेयर करिएगा तो किसका ज्यादा होगा? सबका सिग्मा सेम है, z अलग अलग है, तो z effective will be more if z is more. If sigma is same, then if z is increasing, z effective also increasing, atomic size decreases. तो किसकी atomic size ज्यादा होगी? केतकी बेटा प्लीज एडमिट ना. Yes, sir. श्रेयस आर यू देयर? हाँ सर। बेटा सर एक तो आप, एक्चुअली मुझे लैग हो रहा था आपका ऑडियो, तो मैंने रिजॉइन किया अभी। नहीं आप लेट भी ज्वाइन किए थे पहले, 10 मिनट लेट हाँ ज्वाइन किए. हाँ सर, अभी आज मैं वो कॉलेज में फॉर्म फिल करने गया था, तो अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं. सॉरी सर, सॉरी। हाँ, सिग्मा सेम तो z ज्यादा तो z इफेक्टिव ज्यादा तो एटॉमिक साइज कम. तो साइज किसकी कम होगी बोलिए? Mg2+ की कम, Na+, F- O2-. तो जनरली ही डाल देता है, अदरवाइज स्कैंडियम स्कैंडियम ले आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, z इफेक्टिव में गड़बड़ हो जाएगा. जनरली फॉर आइसोट्रॉन या एटॉमिक साइज काम चल जाता है मैक्सिमम केसेस में. एटॉमिक साइज डिक्रीजेस विथ increase in atomic number for isoelectronic species. ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए. डन बेटा, सुमित आगे बढ़े. केतकी क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर. केतकी प्लीज कम्युनिकेट इन द क्लास, है ना?
हाँ सर. Any doubt, please tell me. फैक्ट, एक दिन आपको मिलते हैं, जिस दिन होस्ट रहते हैं उस दिन पूरी डिस्कशन आप ही के साथ करेंगे जनरलाइज में हम, लेकिन आपको क्लास में पूछने का पूरा टाइम मिलता है, पूरा पूछिए, कोई दूसरा बोले या ना बोले मैटर नहीं करता, बट आई विल कॉल योर नेम. दूसरे बोलेंगे डेफिनेटली. तो लिखा है फैक्टर 15 एटॉमिक साइज, Z50 बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस बढ़ेगा, साइज डिक्रीजेस. तो शॉर्ट फॉर्म में जब इतना ध्यान रखें जब भी चलेगा. Z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. साइज ऑफ वैलेंस सेल साइज ऑफ वैलेंस सेल बढ़ेंगे तो साइज ऑफ भी बढ़ेगा. प्रिंसिपल क्वांटम में बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा. एक ही बात है. प्रिंसिपल क्वांटम में किसका, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर व्हाट, वैलेंस सेल. तो एटॉमिक रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ वैलेंस सेल. इतना ना बोल के सिंपली हम इतना तो लिख सकते हैं ना, एटॉमिक साइज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स. शेल्स में जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी बात कर रहे हैं. नंबर ऑफ सेल्स तो इनफाइनाइट होते हैं. नंबर ऑफ सेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. डाउन द ग्रुप n बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी. ठीक है. मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट रेडियस डिक्रीजेस एज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस. डबल बॉन्ड है 1.54, कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन, बिकॉज इन दोनों में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगा बिकॉज डबल बॉन्ड बन गया और कम हो जाएगा. बट दिस विल बी नॉट इन यूज्ड, क्योंकि हम यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में जा कर रहे हैं तो साइज कम हो जाती है, डिस्टेंस कम हो जाता है, तो एटॉमिक रेडियस भी कम हो जाता है. जनरली वी कंसिडर सिंगल बॉन्ड. चार्ज ऑन कैटायन, जितना ज्यादा चार्ज होगा अट्रैक्शन उतनी बढ़ेगी, Z50 बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा. चार्ज ऑन एनायन जैसे उल्टा. फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक वी डिस्कस्ड डायगोनल रिलेशनशिप. अब डायगोनल रिलेशनशिप इट इज अराइजेस ड्यू टू सिमिलर इन प्रॉपर्टी. दिखता है लिथियम और मैग्नीशियम, दे आर शोइंग. लिथियम के नीचे कौन सी होती है, सोडियम होती है, पर इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती. इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है बिकॉज ऑफ व्हाट, similar in size, similar charge to radius ratio. Because of that, lithium and magnesium are in similar property. Beryllium, aluminum, similar property. Boron and silicon are having similar properties. The best example I will tell you, just keep in mind, again I repeat, the properties of lithium and sodium are not matching, lithium and magnesium are matching. If I take Li2CO3, lithium carbonate, I already discussed in this mole concept. If you heat this, you will get lithium oxide plus CO2. But when you take Na2CO3, no change. K2CO3, they are stable to heat, no change. Rb2CO3, no change. CS2CO3, no change. Cesium chloride, no change. But आप ले लेंगे MgCO3, तो MgCO3 को भी हीट करने से MgO plus CO2 मिलता है. I will tell you typical element. Typical element क्या होते हैं, थर्ड पीरियड को बोलते हैं typical element. Third period elements are typical elements. Third period elements are typical elements. MgCO3 को हीट किया तो MgO plus CO2. तो lithium is matching with what? Magnesium. Because of charge upon radius ratio. Similar charge upon radius ratio. Diagonal relationship. What is the meaning of diagonal relationship? Similarity in properties due to similar
charge to radius ratio, atomic radius ratio. Next, ionization energy. Again, we already studied this in hydrogen atom, but it is generalized form. It is the amount of energy required to remove the electrons from an isolated gaseous atom. Loosely bonded electron होना चाहिए to remove the loosely bonded electron. तो loosely bonded electron कौन से होंगे? outermost में होंगे, उसी को निकाल सकते हैं आप. तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना मतलब क्या हुआ? सप्लाई करना. तो अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, you have to supply energy. Therefore, it is endothermic in nature. Do you have any idea about endothermic, exothermic? Yes, sir. Anyone? Yes, sir. Okay. If in a reaction, energy is released, the reaction is called to be what? Exothermic. reaction. Exothermic. If in a reaction energy is absorbed, we call it endothermic. I will tell you how it is represented in the reaction form. मान लो A से B है, तो delta H equal to minus Q और A to B plus Q और A minus Q gives B. All are exo. What is endo? In endo, this, where Q is positive and Q is amount of heat or energy absorbed or emitted. लिखने का तरीका, डेल्टा एच को बोलते हैं एंथैल्पी चेंज. यहाँ पे आप आर दे दें, आर. Call it what? Enthalpy of reaction. Or heat of reaction. This. Or enthalpy change of reaction. So these are way to write. सबसे common use first वाला ही होता है. सबसे ज़्यादा common use first होता है. But A gives B plus Q, तो Q भी साथ में निकला, Q heat के form में निकला definitely. What is ionization energy? It is the amount required to remove the loosely bonded electron from an isolated gaseous atom. लिखा हमने, डेल्टा एच लिखा. अब डेल्टा एच को हम लोग मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में या किलोजूल पर मोल में. Some characteristic feature of ionization energy. Ionization energy is always positive for all elements. Elements के लिए positive है. ये अगर मैं आयंस की बात करूंगा तो बदल सकता है. बताऊं कैसे? Continuous removal of electrons from an element is known as successive removal and the ionization energy is known as successive ionization energy. इसका मतलब ये हुआ, गौर करिए. If I take element helium ही ले लेते हैं. हीलियम से He+ बनाना, इसको बोलेंगे IE1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. हीलियम प्लस से
helium 2 plus banana, we call it what? Second ionization energy. But if I want to make helium say helium 2 plus directly, then we cannot put any name, it is just energy released. तो जो डेल्टा एच होगा वो सिंपली क्या होगा? एडिशन ऑफ I1 प्लस I2. टोटल इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना निकालने के लिए. स्टेप बाय स्टेप करिए, ऐड कर दीजिए. अब यहाँ पे एक लर्निंग देखिए, बड़ा प्यारा लर्निंग है. इफ यू ऐड दिस टू रिएक्शन यू विल गेट दिस रिएक्शन. तो नेट चेंज होगा, वो भी क्या होगा? इनका समेशन हो जाएगा, एनर्जी का समेशन. क्लियर है सबको? Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? No. यहाँ पे हीलियम 2 प्लस कर लेते हैं. अब मुझे बताना सोच के थोड़ा, कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? बताइए, कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी? टेल मी. सेकंड की ज्यादा होती है क्यों? सर, क्योंकि अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है हीलियम में, अगर एक निकाल दिया तो प्रोटॉन्स का जो मतलब जेड इफेक्टिव जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा होगा, तो और ज्यादा एनर्जी लगेगा उसे निकालने बिल्कुल के लिए. बिल्कुल, कहानी लॉजिकल थी. He प्लस He से बना रहे हैं, न्यूट्रल से बना रहे हैं, और He प्लस में जेड इफेक्टिव और ज्यादा होगी, तो ऑल आर रिलेटेड बेटा. साइज भी छोटा हो गया ना He प्लस का, विच इज बिगर. He और He प्लस, He इज बिगर, तो He प्लस ज्यादा छोटा हो गया. छोटा मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा किसका? न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे. तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? मुश्किल. एनी डाउट? बोलिए. हेलो, एनी डाउट हियर? वो सर बहुत सिंपल है. तो आई, अब ये हमने क्लियर किया, IE1 ज्यादा है या I2 ज्यादा है? IE2 ज्यादा है. तो I3 क्या होगा? इसमें तो I3 नहीं होगी, अभी होगी. हाँ, नहीं, इसमें भी नहीं होगी, पर अगर जब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक हुआ तो हो सकता है. बस. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाएंगे, निकालना और मुश्किल होता जाएगा. एनी डाउट? बताइए. अब थोड़ा सोच के बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. विच आयोनाइजेशन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अवर नॉलेज टिल डेट? हीलियम के लिए I1 निकालना आसान है, I2 निकालना आसान है. I1. कैसे? डोंट रश फॉर योर आंसर, नेवर डू दिस. मैं क्वेश्चन ही देता हूं आपको. फाइंड IE1 for helium if He से He2 प्लस बनाना 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा. 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पर एटम बेटा, ठीक है ना? पर एटम, एक एटम की बात कर रहे हैं. पर मोल के लिए 96.4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है. बताइए. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल.
बताइए। है 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे? आई थिंक सही है। सर मैंने सेकेंड इलेक्ट्रॉन मतलब I2 पहले निकाला क्योंकि रुको एक रुको रुको रुको, जब तुमने सही निकाला तो फर्स्ट राउंड में गलत क्यों बोला? सर वो गलती से। तो वो जल्दबाजी करनी क्यों है? जल्दबाजी एग्जाम में करनी है, वो भी दिमाग शांत रख के करनी है। हड़बड़ाई करेंगे तो फिर आप लूज कर जाएंगे सब कुछ। गुड, मत बोलिए, रहने दे। मैं समझ गया बेटा, सही है बिल्कुल। ठीक है, सब करिए सॉल्व। What is the value of I2 here? 13.6 into Z square, because He plus क्या है? H like atom. If you add this, He से He2 plus बनाना, तो He plus cancel हो जाएगी। Becomes IE1 plus IE2, that is given as 70. And IE1 plus IE2 क्या होगा? 13.6 into 2 square, that is 70. 70 minus 54.4. This. Similar way में, if I write लिथियम से Li प्लस बनाएंगे, Li प्लस से Li2 प्लस बनाएंगे, Li2 प्लस से Li3 प्लस बनाएंगे। कौन सी वैल्यू हमें पता है या निकाल सकते हैं बाय यूजिंग बोर्स थ्योरी? I3। वाई I3 निकाल सकते हैं बिकॉज Li2 प्लस क्या है? H like atom. H like atom. So IE3 should be equal to 13.6 into 3 square. So for any element, IEZ can be calculated. Can be calculated using Bohr's theory. And IEZ is nothing but 13.6 into Z square. Write it. लिखिए अच्छे से।
these are the discussion related to ionization energy. Let's move to periodic discussion. So ionization, अच्छा एक और बड़ा अच्छा प्यारा लिखा हुआ है, देखो बड़ा प्यारा लिखा हुआ है. If I compare ionization energy, तो can I say that यहाँ जो IE2 है वो किसका IE2 है? बोलो. IE2 of helium. IE2 of helium है, helium plus का नहीं. I1 of helium. Similarly here I3 किसका I3 है? I3 of lithium. IE2 of lithium. I1 of lithium. But when I say I2 of helium on, if I say I1 of helium plus, are they same or different? हीलियम प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन निकालना और हीलियम का सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना, बात तो एक ही है. बताइए. Yes, sir. These two are same. कौन ज्यादा होगा? दोनों सेम ही होगा तो कंपेयर करने का मतलब नहीं है. बट I1 ऑफ हीलियम की बात करूंगा, then it will change. So IE2 of helium is greater than I1 of helium. But helium plus कर दूंगा तो both are same thing. Very very important. वो यहाँ मेंशन किया है IE2 of A is equal to I1 of A plus. From successive I values, we can predict the number of valence shell electrons of the corresponding atom. Element I1, I2, X का I3, I4 number of valence shell. ये मैं आपको कराऊंगा फिर से. 800 किलोजूल, 1427, 2670, 25547. ये क्या देख रहे हैं आप? बताइए क्या चेंजेस देख रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 14 लगा, थर्ड को निकालने के लिए 26 लगा, और फोर्थ को निकालने के लिए कितना लग रहा है? बताइए. एक मिनट. फोर्थ को निकालने के लिए कितना लग रहा है? 25,000 लग रहा है. सडनली इतना जंप कैसे होगा? बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट स्टेबल हो गया था आफ्टर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालना, ऑक्टेट बन गया. एक मिनट दीजिएगा. तो द डेटा सजेस्ट व्हाट कि मान लीजिए किसी एलिमेंट में, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत ही कॉमन. मान लीजिए किसी के वैलेंस शेल में, जैसे एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में देख लेते हैं, क्या होता है? 28,3. आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Al प्लस, कोई खास स्टेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ा. Al प्लस Al2 प्लस बनाया आपने, कोई खास फर्क नहीं पड़ा. Al3 प्लस बना दिया आपने. 2,8 मतलब क्या हो गया? इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना. बोलिए. Yes, sir. इसका जैसा, न्यूऑन जैसा. अब अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ये तो स्टेबल है ना, इससे निकालना क्या होगा? बहुत मुश्किल. बोलिए. Yes. जब बहुत मुश्किल होगा तो वो क्लियर दिखेगा मुझे उसके आयोनेशन पोटेंशियल में. तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने गया
मुझे कितना लग रहा है एनर्जी? 25,000 लग रहा है, which indicates what? कि 3 इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस शेल में था ना, बताइए। Yes. एनी डाउट किसी को? जरा सा भी किसी को डाउट है? बोलिए। No, sir. देखो यहाँ पे 11.27 नहीं था, 11.27। फर्स्ट निकाला तो 6, सेकंड निकाला तो 11, पर थर्ड निकालो तो कितना हो गया? 50 रिक्वायरमेंट हो गई, तो 4 टाइम्स हो गया ना। बोलिए, बताइए। Yes. तो डिफरेंस अगर है, अगर डिफरेंस 4 टाइम्स बढ़ जाता है या 3 टाइम्स बढ़ जाता है, तो वो हिंट मिलती है कि दैट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम व्हाट? स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। डन? Yes, sir. ये हिंट मिला, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर से वही आएंगे। एटॉमिक साइज, when atomic size increases then the electrons of outermost shell are more weakly attracted by the nucleus and hence the less amount of energy is required for removal of electron. साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेंगे तो रिपल्शन कम, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन पे, रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे? कम हो जाएंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर फॉर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल ड्यू टू द स्टेबिलिटी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या था? 1s2 2s2 2p4। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। 2p4 का मतलब ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। 2p3 का मतलब हाफ फील्ड है। तो निकालना इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? बोलिए। हेलो? सर मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। तो ये छोटे छोटे एक्सेप्शंस हैं जो आपके बीच में आएंगे। तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स को ऐसे देखिए, मोर फॉर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। यहाँ पे एंड कर लीजिए, एंड अदर कॉन्फ़िगरेशन। अब ये रिजल्ट याद रखिए। Ionization energy value also depends on orbital from which electrons are removed, SPDF। एक होता है penetrating power, penetrating power तो या penetrating effect, penetrating effect। समझिएगा, what is this? The ability of an electron या आप ये कह सकते हैं
penetrating power of an orbital is closeness towards nucleus. अब जो ऑर्बिटल ज्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस के, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा या आसान होगा? बताइए। पेनिट्रेटिंग मुश्किल होगा, बिकॉज वो न्यूक्लियस के क्लोज है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होगी, तो निकालना क्या होगा? मुश्किल। एसपीडीएफ। अब इसका एग्जांपल है, देखिएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन क्या था? मोर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। एग्जांपल देखिए, बेरिलियम का क्या होता है? 1s2 2s2 होता है, और बोरॉन का 1s2 2s2 2p1 होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? पी में। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? एस में। तो किसको निकालना मुश्किल होगा? वो अलग बात है कि अलोंग द पीरियड जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगी? बढ़ती है। तो ज्यादा किसका होना चाहिए था? बोरॉन का। लेकिन होता किसका है? बेरिलियम। बेरिलियम का, ड्यू टू पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि लास्ट अब ये जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ये तभी लगाते हैं जब दो एलिमेंट क्लोजर हो या एक्सेप्ट बाकी रूल्स काम नहीं आ रहे हैं। तो ऑल आर बेस्ड ऑन डेटा। लॉजिक तभी बेस्ड होगी जब हमें पता होगा आंसर क्या है। ड्यू टू पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। तो अगर इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मतलब वो आपको पॉइंट याद नहीं, लॉजिक ज्यादा नहीं लगेगी। अब हम ये जनरलाइज फॉर्म कर दिए, इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द Z effective increases, size decreases, ionization energy increases. पर ऐसा काम नहीं आया नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, ऐसा काम नहीं है बोरॉन और बेरिलियम में। Periodic variations in ionization energy in a period from left to right, ionization energy increases because effective nuclear charge increases and atomic number decreases. Exception along a period, देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, वही स्टेबिलिटी है। और यहाँ पे क्या है? पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे बहुत लोग उसको कहते हैं फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, बट बेटर क्या होगा? पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। एनी डाउट? बेरिलियम का क्या है? 2s2 फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है। 2p1 फुल्ली फिल्ड नहीं है, तो फुल्ली फिल्ड भी कह देते हैं। नहीं तो फिर यहाँ बेटर क्या होगा? ड्यू टू पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, एक्सेप्शन आया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आया। तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव, बोलिए, बढ़ती है, साइज कम होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेंगे। तो देखो एक्सेप्शन फिर से यहाँ पे नियॉन का भी होना चाहिए, बिकॉज एटॉमिक साइज तो बहुत ज्यादा होता है इसका, बिकॉज ऑफ वंडरवाल रेडियस। तो इसमें क्या है? फुल्ली फिल्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो निकालना मुश्किल होगा। अलोंग अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। होना चाहिए था ऐसा। तो एक्सेप्शन है आपके पास एल्युमिनियम, गैलियम में। तो गैलियम की साइज क्या होती है? छोटी होती है ना? गैलियम की साइज छोटी होती है। वही सेम चीज है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 4d is less than 5d because 4d और 5d की साइज ऑलमोस्ट सेम। डाउन द ग्रुप साइज सेम हो गया, बट न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट पुअर है एफ ऑर्बिटल का, डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट अगर पुअर है तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होंगे? ज्यादा लगेंगे। ज्यादा लगेंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या होगा? मुश्किल। तो जो जो एटॉमिक साइज में एक्सेप्शन थे, ऑलमोस्ट वो सभी यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए, आप समझेंगे कि जिरकोनियम और हैफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम था, क्योंकि उसके पहले क्या था? लैंथेनाइड फिल हुए थे। लेकिन लैंथनम के पहले कुछ तो फिल नहीं हुआ था वैसा, इसलिए डाउन द ग्रुप जाएंगे। अगर मैं इस पीरियड में जाऊं, थर्ड ग्रुप में जाऊं अगर डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर उसके नेक्स्ट ग्रुप में देखो, ग्रुप 4 में,
तो हैफनियम के पहले सारे लैंथेनाइड्स फिल्ड हो गए, एफ ऑर्बिटल्स फिल्ड हो गई, शील्डिंग फिट पुअर लग रही है, साइज छोटी हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम एक्सेप्शन है। तो जिरकोनियम और हैफनियम की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, तो डाउन द रोड क्या होगा, साइज बढ़ना चाहिए था, साइज बढ़ा नहीं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। Highest ionization energy is for helium, lowest ionization energy is for cesium. Noble gases have highest ionization energy in their respective period. Alkali metals have lowest ionization energy in their respective period. बताओ अल्कली मेटल में क्यों होता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। तो अगर एक मैं निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, 2,8, तो स्टेबल बन जाएगा। तो डेफिनेटली वो इंटरेस्टेड होगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सोडियम से सोडियम प्लस बनना बहुत इंटरेस्टेड है, और सोडियम सोडियम 2 प्लस नहीं बनना चाहेगा। सोडियम 2 प्लस क्यों बनना चाहेगा, बिकॉज उसकी ऑक्टेट तो मिल चुकी है, तो वो नहीं बनना चाहेगा। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। Low ionization energy of an element indicates that it has more metallic character, more basic character. High ionization energy of element indicates that it is either noble gas or halogen. Low ionization energy of an element indicates that its reducing power is high. सोडियम अगर सोडियम प्लस बनना चाहता है, it will try to remove the electron. खुद का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज हो रही है, दूसरे को क्या करेगा, वो रिड्यूस, है ना, हाँ। सिंपल। लेकिन अगर मैं देखूं टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो निकालना इजी है इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन फिर भी लिथियम का हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर होता है। एक्सेप्शन है, समझाऊंगा कैसे होता है। बिकॉज सिर्फ अच्छा इलेक्ट्रॉन निकाल देना सफिशिएंट नहीं होता, एक फैक्टर है वो। इफ आई एम एबल टू इजीली रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तो वो फैक्टर है एक। इन और भी फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं रिड्यूसिंग पावर को, पर मोर और लेस इफ द आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेसर देन इट्स रिड्यूसिंग पावर इज मोर। एक्सेप्शन यहाँ पे लिथियम है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब उल्टा जस्ट, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करना, ऐड करना। एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बुलाना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दूसरा नाम नहीं कहेंगे, इसको मॉडिफाइड नेम कहते हैं, इंप्रूव्ड नेम कहते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज added to 1 mole of isolated gaseous atom। अब रिलीज जरूरी हमेशा नहीं है, ये जरूरी नहीं है रिलीज हमेशा हो, पर आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा न्यूट्रल एटम की क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा क्या होती है, रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, बट इलेक्ट्रॉन ऐड करना हमेशा जरूरी नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस डेफिनेशन। तो ये जो डेफिनेशन था रिलीज वाला, ये डेफिनेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बेटा, समझिएगा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है। फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल एटम से रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो यहाँ लिखा है, एनर्जी रिलीज, इट इज नॉट ऑलवेज वैलिड। जैसे इफ इट इज नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम का क्या था, 1s2 2s2 2p3 ऑलरेडी स्टेबल है। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे आप, तो 1s2 2s2 2p4 बन जाएगा और n माइनस बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया हमने, इस सिचुएशन में एनर्जी रिलीज नहीं होती। n से n माइनस बनना, डेल्टा एच क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अंडरस्टूड एवरीवन? पॉजिटिव का मतलब क्या है, रिलीज और एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब्ड एंडो। तो ये डेफिनेशन ही गलत हो गया हर एक के लिए, तो ये उसी के लिए एप्लीकेबल है। तो अच्छा रिलीज कितना हुआ, चलो अगर मैं पूछूंगा रिलीज कितना हो तो क्या बोलोगे, 0। रिलीज तो हुआ ही नहीं ना। यस सर। नियॉन, नियॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड करिए,
नियॉन माइनस बनेगा, एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। क्यों? क्योंकि आप स्टेबल से क्या बना रहे हैं? अनस्टेबल। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन में ऐड करूं तो ये पूरा डिस्कशन कर लेते हैं क्विकली। O से O माइनस बनाना, डेल्टा एच इज व्हाट? माइनस क्यू। क्यू कर लेते हैं। O माइनस पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना। अब O का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 4, यहाँ पे 1s2 2s2 2p 5, O2 माइनस का 1s2 2s2 2p 6। आप कहेंगे जो सर आपने और बना दिया स्टेबल, तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए? और नेगेटिव माइनस और होना चाहिए था माइनस, पर होता नहीं है बेटा। और दोनों को ऐड करेंगे अगर, तो डेल्टा एच विल बी प्लस Q3 और Q1 Q2 Q3 आर पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से क्या होता है? ज्यादा। सर बट जब O माइनस O2 माइनस बनता है तभी उसके बाद वो स्टेबल होता है ना, उसके O माइनस में वो स्टेबल नहीं है ना, तो एनर्जी रिलीज होगा ना। तो कितना कन्विंसिंग पॉइंट लगा दिशा, तुमने जो कहा सबको लगा होगा कन्विंसिंग पॉइंट है, कोई गलत नहीं है। तो स्टेबल बन रहा है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो एनर्जी लग क्यों रही है? स्टेबल से अनस्टेबल बनना, एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज। ठीक। अनस्टेबल से स्टेबल बनना, एनर्जी रिलीज। रिलीज। बहुत ही बेसिक थियरी, हमेशा काम आती है। तो आप सेकंड वाले रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? स्टेबल बन रहा है, यस। लेकिन आपके पास आपके हाथ में इलेक्ट्रॉन है, नेट चार्ज आपके यहाँ नेगेटिव चार्ज है। आप पे मैं इलेक्ट्रॉन जब भेजूंगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा आपसे कि रिपेल हो जाएगा? रिपेल होगा। तो ऑलरेडी फॉर्म्ड अनायन पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होता है? मुश्किल होता है। भले वो स्टेबल हो पर वहां जाएगा नहीं ना, जाएगा कैसे? रिपेल होगी। एनी डाउट? नो सर। नाउ ये जो डेल्टा H1 लिखा, डेल्टा H को डेल्टा H1 कर लीजिए और डेल्टा H2 कर लीजिए। डेल्टा H1 को बोलते हैं डेल्टा H Eg1, डेल्टा H2 को बोलते हैं डेल्टा H Eg2। Eg का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2। Eg1 ऑफ व्हाट? O। Eg2 ऑफ व्हाट? O। डेल्टा H Eg1 can be positive or negative. Delta H Eg2 can always be, delta H Eg2 will be always पॉजिटिव। positive, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म्ड अनायन पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होता है? मुश्किल होता है, भले स्टेबल क्यों ना हो। सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है, लॉजिकल होने से भी हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल डेटा उसको जस्टिफाई करने की हमारी जरूरत है। हमारा लॉजिक कुछ नहीं काम आएगा। और डेल्टा एच भी क्या हो गया? पॉजिटिव। ये क्या हो गया? पॉजिटिव। दोनों का ऐड किया तो पॉजिटिव, तो डोमिनेट कर गया सेकंड वाला पार्ट उस पे फर्स्ट वाले पे। लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ O माइनस, तो आप क्या बोलोगे? थिंक एन आंसर। एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ फर्स्ट वाले में इन दिस केस, रिलीज। सेकंड वाले में एब्सॉर्ब। एनर्जी रिलीज, इसमें एनर्जी एब्सॉर्ब। नेट एब्सॉर्ब। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन? तो आप क्या बोलोगे? Q1, सिर्फ अमाउंट बोलोगे। समझ रहे हो? ध्यान से सुनिएगा। इफ आई आस्क यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो माइनस Q1 प्लस Q2 बोलेंगे, चलेगा।
बट अगर मैं डेफिनेशन देखूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज डिफाइंड एज रिलीज्ड, तो रिलीज तो सिर्फ फर्स्ट वाले में ही हुआ ना. इफ delta H Eg is negative, then electron affinity is nothing but delta H Eg का mod. If delta H Eg is positive, then electron affinity is either zero, तो zero ले लो, or not defined. एक मिनट बेटा. नॉट क्या डिफाइंड तो ठीक कैसे है, होगा? क्योंकि वो रिलीज के टर्म में डिफाइंड है बेटा. रिलीज हुआ ही नहीं सेकंड में. आर यू गेटिंग इट? तो तभी तो रिलीज definition- हुआ नहीं तो जीरो हो जाएगा. तो आइदर जीरो और नॉट डिफाइंड, मतलब वो कोई मतलब नहीं है ना. रिलीज ही नहीं हुआ ना, तो डेफिनेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं. तभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म को डिस्कार्ड कर दिया और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ले आया. हाँ बेटा, सॉरी. डन, यहाँ तक क्लियर है. यस. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले टर्म को हम लोगों ने नया बना दिया. क्या बोल दिया उसको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दिया. इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एंथैल्पी चेंज होगी, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी, बोलो, नेगेटिव. नेगेटिव. एनी डाउट? बोलो. नो सर. तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. Electron affinity refers to tendency of giving gain electrons in species which have high
10 किलोटॉन हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन जो लिखा हुआ है माइनस, मतलब अगर वो तभी जब ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो, नेगेटिव हो। तो इससे बेटर जो डिस्कशन है वो कौन सा लिखेंगे हम लोग, ये वाली जो डिस्कशन यहाँ पे की हमने, याद रहेगा सबको? यस सर। बहुत सिंपल सा डिस्कशन किया मैंने, हमसे याद रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कोई कंपैरिजन, ऑलवेज पॉजिटिव, वही सब लिखा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी रिलेटेड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस। आप समझ सकते हैं, ए पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ए पे हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया मान लीजिए, देखिएगा। केतकी, आर यू देयर? Yes, sir. बेटा प्लीज पार्टिसिपेट इन द क्लास, Sir. है ना? तो आप लोग अच्छे हैं, यही प्रॉब्लम है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, सीरियसली बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी बेटा ए माइनस से ए प्लस बनाने में, तो अपोजिट ही कर दिया ना रिएक्शन को हमने, बताइए। यस सर। जो एनर्जी यहाँ इन्वॉल्व होगी वही एनर्जी यहाँ इन्वॉल्व होगी, पर साइन क्या होगी उनकी? ऑपोजिट। अपोजिट। मतलब इफ आई टॉक अबाउट ए से बी, अगर डेल्टा एच को बोलूं मैं कि माइनस क्यू है, तो बी से ए क्या होगा? प्लस क्यू। प्लस क्यू। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड क्या होगी? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। जस्ट अपोजिट हो जाती है। फैक्टर्स, वही फिर से मैंने आपको कहा ही था कि डेफिनेशन, फैक्टर्स, ट्रेंड्स, एक्सेप्शन, ये चार चीजें होती है। एटॉमिक साइज, तुम्हारा बुक जो था आईसीएससी वाला, विराट दलाल, बहुत अच्छा बुक था, उसमें सर तुमने हम ढंग से लोग विराट दलाल नहीं यूज करते थे। कंसाइज पढ़े थे, सेलेना। हाँ कंसाइज। हाँ वो भी अच्छा बुक है, वो बढ़िया बुक है, सेम ही है, मतलब बस विराट थोड़ा क्या है, सिस्टमेटिक है, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ और कुछ नहीं। एटॉमिक साइज, factors affecting electron affinity. As atomic size increases, the attraction of an entering electron into the valence shell decreases, and hence electron affinity also decrease. तो atomic size पे अगर देखेंगे, आप खुद सोचो किस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना आसान होगा, जो न्यूक्लियस से नजदीक है, न्यूक्लियस से दूर है? न्यूक्लियस से नजदीक। तो अगर साइज छोटा होगा, तो साइज छोटा अगर एटम का होगा, तो एटम के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, और साइज बड़ा है और एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन है, किसको अट्रैक्ट करना इजी होगा? छोटे साइज। सिंपल। तो एटॉमिक साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फिर से किस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना आसान होगा, जब न्यूक्लियर जेड इफेक्टिव ज्यादा या जेड इफेक्टिव कम? जेड इफेक्टिव ज्यादा। क्योंकि जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उस पर जेड इफेक्टिव ज्यादा लगाएंगे तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करना आसान होगा। इट इज सिमिलर टू व्हाट, योर आयोनाइजेशन एनर्जी, उससे अलग है ही नहीं। शील्डिंग इफेक्ट, और कोई ऑर्डर काम नहीं आता। आप देख रहे हैं ना कि एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड सिर्फ ट्रेंड के लिए है, एक्सेप्शन भरे पड़े। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनफाइनाइट एक्सेप्शंस। एक्चुअली एक्सेप्शन ही इतना है कि नॉर्मल ट्रेंड कोई काम का नहीं रहता, बस ट्रेंड पढ़ने के लिए होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लो फॉर द हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। ऑब्वियसली जो फुलफिल्ड, अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया, जो ऑलरेडी फुलफिल्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होगा, मुश्किल। उसमें एनर्जी क्या होगी, बोलिए? कम रिलीज होगी, कम रिलीज होगी ना, उसको इस तरह से बोलेंगे, कम रिलीज होगी। तो वापस Because- क्वेश्चन बोलोगे? इफ आई से हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है तो ऑलरेडी स्टेबल है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होगा, मुश्किल होगा ना। और इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होगा तो एनर्जी नहीं रिलीज होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी ना। यस। स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, सिंपल। दिक्कत सिर्फ एक ही है बेटा कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर न्यूट्रल एटम, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। तो बस ये जानना है कि स्टेबल सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या मुश्किल है। डेल्टा is positive for noble gas, alkaline earth metal, nitrogen due to half filled stability. Simple. Alkaline earth metal क्यों? If you talk about beryllium, तो beryllium में क्या है, 1s2,
2s2 ये फुलफिल्ड है, उसको ऐड करना क्या होगा, मुश्किल होगा। उसके बाद पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए, बिकॉज जेड इफेक्टिव क्या हो रही है, बढ़ रही है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेंगे। और डाउन द रो क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। पर एक्सेप्शन भरे पड़े हैं, इनफाइनाइट एक्सेप्शंस हैं, सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस इसी में है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अल्कली मेटल इज मोर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अल्कलाइन मेटल, बिल्कुल सही है। ये NS1 था, NS1 से NS2 बन गया, ये हाफ फिल्ड था, ये हाफ फिल्ड से क्या बन गया, फुल फिल्ड। पर ये फुल फिल्ड था और ये NP1 कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अगर नाइट्रोजन क्या है, हाफ फिल्ड है। हेलो, हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड में इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होगा, मुश्किल। तो कहाँ पे इजी होगा ऐड करना, जो हाफ फिल्ड नहीं है, जो फुल फिल्ड नहीं है। और ऐड करना इजी होगा मतलब एनर्जी रिलीज होगी। स्टेबल से अनस्टेबल से स्टेबल बनाएंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। सेम बेरिलियम और बोरॉन, नियॉन फुल फिल्ड, along the group देखिए, in a group from top to bottom electron affinity decreases, but for p block elements only the electron affinity of second period elements is less than the third period element। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एक ही एग्जांपल करेंगे सिर्फ, only one example that is enough for the discussion। फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, 3p5। F में इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो F माइनस बने, ऑक्टेट कंप्लीट। Cl में इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो Cl माइनस बने, ऑक्टेट कंप्लीट। तो दोनों ही ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर कहता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड, F कहां से आता है, सेकंड पीरियड, और क्लोरीन का कहां से आती है, थर्ड पीरियड। फिर आप कैसे कंपेयर करें, दोनों ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। फिर आप कहेंगे सर डाउन द साइज क्या होती है, बढ़ती है। यू कैन से दैट साइज बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी सर। तो किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए था, फ्लोरीन। ये एक्सपेक्टेड है, ये होना चाहिए था। एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल उल्टा। अब कहानी लानी पड़ेगी नई, क्योंकि हमारी जो कहानी थी वो काम नहीं आई। सब पे कहानी है, अलग अलग कहानी। तो कहानियों को दिल पे लेना नहीं है, सर यही सीखा है तो यही ब्लाइंडली फिट करना है। हो सकता है एग्जाम्पल बदल जाए। उसका रीजन ये है कि F की साइज छोटी होती है, F के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। क्लोरीन की साइज बड़ी होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज्यादा है, बोलिए। साइज क्या है यहाँ पे, छोटा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा। कैसे ज्यादा होगा, कम होगा ना। साइज बड़ा है बेटा, साइज बड़ा है तो क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो जो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिपल्शन ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, कम। कम मिलेगी। ज्यादा कहाँ मिलेगी, फ्लोरीन में। क्लोरीन में। तो इलेक्ट्रॉन आने नहीं देगा उसको, तो नहीं देगा मतलब क्या, वो डिफिकल्टी है। हेलो, डिफिकल्टी का मतलब क्या, हो एनर्जी कम रिलीज होगी, वेरी सिंपल। तो नई कहानी बना दी हमने। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट का सेकंड पीरियड से हमेशा क्या होता है, ज्यादा। सबके साथ ज्यादा होता है, सबका। सर, हाँ, मतलब जब फ्लोरीन में हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा ना, एब्जॉर्ब नहीं होगा, कम रिलीज होगा, मुश्किल होगा आने में। स्टेबिलिटी तो गेन कर रहा था पर बड़े आराम से नहीं आ पाया ना। तो बड़े आराम से आया मतलब क्या, वो एनर्जी अच्छे से रिलीज नहीं हो पाया।
कि कुछ कंपनसेट हो गया, एनर्जी रिलीज तो हो रहा था बट वो इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन हो रहे थे उसमें कंपनसेट हो गया। रिपल्शन मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बेटा, अट्रैक्शन का मतलब एनर्जी रिलीज होता है। तो रिपल्शन ज्यादा कहाँ मिला? फ्लोरीन केस में। तो एनर्जी जो रिलीज थी वो कम हो गई बिकॉज एब्जॉर्ब भी हो गया थोड़ा बहुत। या इतना सबसे सिंपल, एफ से एफ माइनस बनना, सीएल से सीएल माइनस बनना, दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट हो, दोनों में स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बट एफ से एफ माइनस बनने में इलेक्ट्रॉन्स को आने में डिफिकल्टी थी तो उतने अच्छे से नहीं आ पा रहा था, एनर्जी क्या हो जाएगी? कम रिलीज हो जाएगी बिकॉज रिपल्शन के कारण एनर्जी क्या हो गई? कम रिलीज हो गई। तो ये जनरलाइज फॉर्म आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। थर्ड पीरियड एलिमेंट का सेकंड पीरियड से क्या होता है? कम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का मॉड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैस एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल इज मे बी टेकन एज 0 क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव होते ही नहीं है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? 0, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज नहीं होती है। In case of nitrogen it is half filled, in case of neon it is full filled, स्टेबिलिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर पाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो रिलीज नहीं होगी, और रिलीज नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड ही नहीं होगा, और डिफाइंड नहीं होगा तो वैल्यू क्या ले लेंगे? 0. But we can take electron gain enthalpy for everything. Electron gain enthalpy can be positive or negative, but electron affinity is always positive or 0 or not defined. 0 मतलब not defined, क्योंकि डेफिनेशन में क्या था उसके? amount of Release energy released. रिलीज था। अब रिलीज ही नहीं हुआ तो डिफाइन कैसे करेंगे? डन यहाँ तक? Yes. अब एक नेक्स्ट सब टॉपिक है, कल की क्लास में खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ तक पढ़ेंगे, पेज नंबर लिखिए 39 तक। दोनों विषय अगर दूंगा दिशा, वरना मैं भूल जाता हूँ तो आपको याद दिलाना पड़ता है। और पेज नंबर 39 तक पढ़िएगा अच्छे से, डेफिनेटली दिक्कत आएगी पढ़ने में फिर से। अब रिवाइज करिए अच्छे से, चीजों को देखिए, एग्जाम्पल्स को, सिर्फ एग्जाम्पल्स को, हर एक सब टॉपिक का, हर एक प्रॉपर्टीज का जो एग्जाम्पल्स है उसको अलग से लिखिए नोटबुक पे, सिर्फ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आप खुद से लिखेंगे तो एग्जाम्पल आपके सामने रहेगा और दीवार पे चिपका दीजिए। ये एग्जाम्पल पूछते हैं, इसे बाहर नहीं पूछते। ठीक है, क्लियर है? सर और आज ये पीडीएफ भी अपलोड कर दोगे? हाँ, दोनों कर देता हूँ फटाक से। और सर आपने लास्ट लेक्चर का नहीं किया? किया सर मैंने चेक किया वापस, अरे नहीं सेम दिख रहा है। डेट लिखा हुआ नहीं है, सेम फाइल है, यही फाइल फिर से अपलोड करूंगा ना। हाँ सर, उसको- बट उसमें बस 2 ही पेजेस दिखा रहा है। 2 पेज दिखा रहा है? हाँ, और हम लोग का लास्ट लेक्चर में 6 पेजेस तक हुआ था। ओके करता हूँ फिर से, ठीक है ना? थैंक यू सर। ओके चलिए।